Hey, welcome to Let's Grow Together with Kalyan, Shruti and Richa. ये पॉडकास्ट सीरीज बनाया ही गया है टू लर्न फ्रॉम द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स. ये ट्विटर स्पेस सीरीज को पॉडकास्ट में कन्वर्ट किया गया है सो एवरीथिंग इज रॉ एंड अनफिल्टर्ड. You will hear the audience asking questions to the guest as well. कि ये podcast series is going to be super insightful. So come with an open mind and I promise you बहुत कुछ सीखने मिलेगा. So let's start the podcast in 3, 2, 1. So this is the fourth episode of Let's Grow Together, and we are going to discuss about how to plan your finances. So that's going to be very amazing. So let's say hi to Shruti. Hi Shruti, how are you doing? Hey, hi Kalyan. I'm fine. How are you? All good Shruti. मैं तो बहुत खुश हूँ. आप कैसे हो? How was your day? It was great. Amazing. So let's say hi to Preeti ma'am. Hi Preeti ma'am, how are you? Hi guys, I'm all well. I hope you all are well as well. Thank you so much, ma'am, for joining us today. My pleasure, Shruti. Thanks for having me. Great. So I think Shruti, we should start the session and people will keep Yeah, joining sure. it. Yeah. Hmm. Okay. So let me give a small intro about Preeti ma'am. So Preeti ma'am is a SEBI registered investment advisor and she is a fee only financial planner. She is also a founder and owner of Apna Dhan Financial Services, which is associate of Insurance Institute of India. So ma'am, how are you feeling? आपको कैसा लग रहा है ये space join करके यस कल्याण, बहुत अच्छा लग रहा है जब भी मैं कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बात करती हूँ. सो इट्स ऑलवेज काइंड ऑफ गिविंग बैक टू सोसाइटी, राइट? सो वॉट एवर नॉलेज आई हैव, इफ आई कैन शेयर विथ you all, and if anybody from after listening these sessions, such kind of session can change their thinking or can make difference in their finances, so it's all what I really want, right? So I'm always I'm open for such kind of sessions anytime. So thanks for having me. Absolutely. But मैम आई थिंक आपके यहाँ से थोड़ा सा डिस्टरबेंस है. इज इट दैट श्रुति? डिस्टरबेंस है थोड़ा सा प्रीति मैम की तरफ से? अभी कैसा है? Yeah. मच बेटर ओके मैम. ओके या ओके. या बट थोड़ा सा अभी भी डिस्टरबेंस है आई अच्छा, गेस. तो एक मिनट. हाँ, मैं हेडफोन यूज कर रही हूँ. अगर नॉर्मल है तो फिर आप बता दीजिएगा ये कैसे लग रहा है. जी जी जी. Meanwhile, so basically I attended one of the Preeti ma'am का session about the financial planning and budgeting. तो मुझे वो session बहुत अच्छा लगा. So that is the reason why I and Shruti decided कि नहीं हमें मैम को बुलाना चाहिए for this absolute episode that we are doing, like the space series that we are doing, and we should talk about how to plan our finances because there are a lot of young people जिन्होंने just अपना journey start किया है. So it will be super useful for them. So should we start, ma'am? Is it everything okay from Definitely. your side? Yeah. All good, Kalyan. Preeti ma'am, are you able to hear us? Hello, Preeti ma'am, are you there? Yeah, is it fine now from my end now? Yeah, this is Uh, fine. much better, yeah. Okay. Actually, yeah, maybe some because of some internet issue, you may be having some trouble. But I think now I can hear you as well, and my voice is also clear. Yeah, it is very clear. Thank you. Okay. Okay. So, ma'am, I'll start with first question. तो मेरा पहला question जो आपको होगा वो होगा कि basically we talk about budgeting, but what exactly do you mean? Yeah, what does it mean to talk about budgeting? What exactly is budgeting, and how should one create a budget considering he or she could be a college student or just started their corporate journey? तो budgeting start कैसे करें, कैसे समझे? Correct. See, it's budgeting या expense management is the first stepping stone of personal finance, right? जब आप streamline करना चाहते हैं अपने finances, or if you want to go ahead and make sure that you are following a right path of financial freedom, so budgeting and expense management, they are very crucial. और जितना जल्दी अगर आप इसको करना स्टार्ट करेंगे, जैसे आपने कहा कि कॉलेज से अभी अभी बाहर निकले हैं या कॉलेज के लास्ट ईयर में है और आपको कुछ इंटर्नशिप से कुछ पैसे मिल रहे हैं या
आपको एक सब्सटेंशियल किटी मिलती है आपके पेरेंट्स से, तो उसी टाइम पे अगर आपने देखा कि उस पैसे में से मैं कितना बचा पा रहा हूँ और जो खर्चा कर रहा हूँ वो किस किस कैटेगरी में कर रहा हूँ, तो अगर ये आप पहले से अगर इस टास्क को लेंगे और इसको अपने हैबिट जैसे उतारेंगे तो आगे चल के आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा. Because see, personal finance and financial management, the early you start, the early you actually inculcate good habits of saving, investing, doing expense management, budgeting, तो उतना आपको लॉन्ग टर्म में इसका बहुत फ़ायदा होता है. या सडनली 40s में जाके जब हम ये सब करना चाहते हैं तो हम भी बहुत रिजिड हो जाते हैं, और बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना भी हम चाहे तो हम एक्सपेंस मैनेजमेंट या बजटिंग को उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते. तो बजटिंग करना मतलब क्या है, एकदम सिंपल स्टार्ट है. तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि व्हाट विल बी माय फ्यूचर एक्सपेंसेस, राइट. तो एक बार उसको लिस्ट डाउन करके देखिए. समझो अभी आपको इमीडिएट जॉब लगी है एंड आप घर से दूसरे सिटी में आए हैं, राइट. तो आपको क्या खर्चा रहेगा तो सबसे पहले रेंट आएगा, राइट. उसके बाद यूटिलिटी बिल्स आएंगे. अगर आप घर पे खाना बनाएंगे तो ग्रोसरी और वो सब सामान आपको लेना है. इफ़ यू आर हायरिंग अ मेड या कुक तो उनकी सैलरी हो गई. बेसिक आपके ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस. तो ये सब हेड्स जब आप लिखेंगे और आप देखेंगे कि प्रोबेबल कितना खर्चा आप करेंगे, वो एक बार आप लिस्ट लेके बैठ जाओ. फिर उसके बाद देखो कि इन हैंड सैलरी कितनी है और ये हेड्स के नीचे जो मैं खर्चा करना चाहता हूँ वो कितना हो रहा है, और वेदर सैलरी से ज़्यादा हो रहा है या सैलरी के उतना ही हो रहा है. ये आपने अगर समझो लिखा तो वेदर इतना ही हो रहा है उतना आपको करना है क्या, नहीं. तो आपको मिनिमम आपकी सैलरी का 20-30% बचाना ही है. एक्चुअली मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर आप बैचलर हो, यंग हो, इन योर 20s, तो मेक श्योर दैट यू आर सेविंग एटलीस्ट 50% ऑफ योर इन हैंड, राइट. तो चलो अगर आपने स्टार्ट भी 20 या 30% से किया तो उतनी अमाउंट पहले बाजू में रखने के बाद फिर यू नीड टू सी कि अभी मेरे पास टोटल अमाउंट कितनी है स्पेंड करने के लिए. once you get that amount, then you have to see कि what are the mandatory expenses which I need to do and what are the discretionary ones which I am planning to do, like shopping, going out, eating out, hanging out with friends each weekend, something like that, right. तो उसमें फिर आप सब हर एक हेड को परसेंटेज वाइज आप एलोकेट कर सकते हो. तो इस तरीके से पेन एंड पेपर या एक्सेल पे अगर आप ये करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ओके आई कैन अलोकेट दिस मच परसेंटेज टू माई से रेंट और यूटिलिटी बिल्स मेड. तो आप उसी रेंज में आपका खर्चा जो है वो मैनेज करना चाहेंगे. बहुत बार ऐसे हो जाता है कि सैलरी मिलती है तो वी एंड अप स्पेंडिंग मोर ऑन रेंट्स, वी बाय वेरी एक्सपेंसिव क्लोथ्स और एक्सेसरीज़ और कुछ लैपटॉप, और उसके बाद समझता है कि अरे ये सब मैंने पहले ही ले लिया, अभी एक तो शायद अगर वो ईएमआई में है तो कंटिन्यू करना पड़ेगा, या अभी मैंने रेंट बड़ा वाला घर ले लिया तो कम से कम मुझे 11 महीने तो रहना ही है, अगर इफ़ देर इज़ नो चॉइस ऑफ कमिंग आउट ऑफ इट, राइट. तो एक बार कमिट करने से पहले अगर ये आप बजटिंग पहले ही कर लेंगे और उस हिसाब से परसेंटेज वाइज अगर आप एलोकेट करेंगे एक्सपेंसेस तो आगे चल के आप इसका बहुत बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है. सो बजटिंग इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप टू इवन स्टार्ट स्पेंडिंग अ पेनी, राइट. सो फर्स्ट सैलरी अगर हिट होने वाली है तो उससे ही पहले आप रीअलोकेट होने वाले हो तो उसके ही पहले अगर ये बजटिंग कर लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद होगा. थैंक यू सो मच मैम. एंड आपने ये भी बताया कि हाउ टू प्रॉपरली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, कैसे सेव करना है, विच इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अगर लोगों को ना समझता नहीं है व्हेन दे हैव जस्ट स्टार्टेड अर्निंग कि फाइनेंशियल गोल. हेलो. Kalyan, you are हाँ, not audible. या योर वॉइस, हिज वॉइस हैज़ गॉन, आई हेलो. थिंक. या बीच में चला गया सॉरी. था वॉइस. ओके आई थिंक अपने आप माइक बंद हो गया. बट आई वाज सेइंग कि माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट हाउ टू प्लान फाइनेंशियल गोल्स. तो बहुत लोगों को समझता नहीं है व्हेन दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर जॉब की फाइनेंशियल गोल्स की प्लानिंग कैसे की जाए, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग एक फाइनेंशियल गोल है, मैरिज एक फाइनेंशियल गोल है. बट ऐसे गोल्स क्योंकि बहुत डिस्टेंट होते हैं इसलिए समझता नहीं है लोगों की इसकी प्लानिंग कब से शुरुआत की जाए. जस्ट बिकॉज उन्होंने स्टार्टिंग की है तो उन्हें ऐसा लगता है कि थोड़ा तो एंजॉयमेंट करनी चाहिए लाइफ के साथ,
बट तो उनको वही चीज नहीं समझता। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने भी वो गलती की है। सो आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे कोई अपना फाइनेंशियल गोल्स को समझ सके एंड साथ ही साथ प्रिपेयर कर सके आपको। डेफिनेटली। से बहुत बार यंगस्टर्स को यही लगता है कि अरे अभी मैंने जॉब चालू किया है, अभी तक मुझे मॉम डैड के पैसे मांगने पड़ते थे, एक बजट था उनका, उसी उसी पे मेरा खर्चा होता था, और अभी अब जब मैं खुद कमा रहा हूँ तो सबसे पहले हमारा एक्सपेंसेस कहाँ पे जाता है, तो एस्पिरेशंस पे, डिज़ायर्स पे, राइट। और ये सही भी बात है, मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आपको सिर्फ फ्यूचर के बारे में ही देखना है, प्रेजेंट को भी जीना है डेफिनेटली। और बहुत सारे यंगस्टर जो मेरे क्लाइंट हुए थे पोस्ट कोविड, तो वो पहले यही बताते थे, बोलते थे कि मैम अगर हमारे लाइफ का ही कुछ पता नहीं क्या होने वाला है तो क्यों ना मैं आज का दिन ही पूरा जी लूँ, राइट। तो मैं हमेशा उनको कहती थी कि यही बात अगर आपके दादा दादी समझो वो 85 या 90 में है, वो अगर सोच रहे होते कि मैं क्यों ना सब उड़ा दूँ या सब मज़ा कर लूँ, तो फिर वो इतने दिन तक सस्टेन कर पाते, या वो समझो आप भी उस उम्र तक चले गए तो आप क्या करोगे, राइट। तो ये बहुत देखना बहुत ज़रूरी है कि इट्स नॉट अबाउट द प्रेजेंट, यू हैव टू हैव अ बैलेंस बिटवीन एन्जॉइंग योर प्रेजेंट एंड एज वेल एज प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन पे मैंने कहा था कि जब आप सेविंग रेट एक डिसाइड कर लेते हो, तो जैसे समझो आपने स्टार्ट किया 30% से, राइट। सो इफ़ यू आर अर्निंग से 100 रुपीज़, तो 30 रुपीज़ जो आपकी बचती है, तो बहुत बार लगता है कि अरे मैं तो बहुत यंग हूँ तो ये 30 रुपीज़ का क्या करूँ। तो सिंपल आपके गोल होना चाहिए कि एक तो मैं इमरजेंसी फंड थोड़ा सा बाजू में रखूँ, सेकेंडली मेरे दो इम्पॉर्टेंट गोल्स होते हैं, जैसे आपने कहा रिटायरमेंट प्लानिंग, राइट। बहुत बार रिटायरमेंट प्लानिंग ये जो वर्ड होता है ये यंगस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो मैं उनको कहती है ठीक है रिटायरमेंट प्लानिंग वर्ड मत यूज़ करो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, फाइनेंशियल फ्री या फायर वर्ड तो आपको अच्छा लगता है, राइट। कौन चाहता है, नहीं चाहता है कि मैं ऐसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँ कि मुझे बिल्कुल काम करने की ज़रूरत ना पड़े, एक्जॉटिक वेकेशन लूँ जब चाहे उठूँ। एक बार तो लोग कहते हैं कि अलार्म न लगा के उठना भी एक लग्जरी हो गई अभी, दैन विच इज़ ट्रू, राइट। तो उस तरीके से अगर आपको जीना है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तभी मिलेगा आपको कि आपके पास एक थंब रूल के हिसाब से कम 25x अमाउंट आपके पास है, मतलब जो आपका प्रोबेबल एनुअल एक्सपेंस है उससे अगर 25 टाइम्स आपके पास पैसा है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे थिन फाइनेंशियल फ्रीडम मिल गया। फैट फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 50x होना ज़रूरी है, लोग 50 to 70x भी कहते हैं, लेकिन चलो 50x भी हो गया तो भी आप कह सकते हो कि आई एम फाइनेंशियल फ्री। तो ये आने के लिए आपको एक ड्यूरेशन फिक्स करना होगा। अगर आपकी कमाई बहुत अच्छी है, आपका सेविंग रेट बहुत अच्छा है 70-80%, तो आपको डेफिनेटली ये जल्दी मिलेगा। अगर आपका मॉडरेट है तो और कुछ साल लगेंगे, और अगर आपके सेविंग बहुत कम है तो उससे भी ज़्यादा समय लगेगा। तो ये जब मैं बात मेरे यंगस्टर्स यंग क्लाइंट से करती हूँ तो उनको लगता है कि सच में मतलब ये एक्सपेंस मैनेजमेंट को सिखाने का ये और एक तरीका हो गया है कि कितना लंबा आपको काम करने की ज़रूरत पड़ रही है अगर आपका सेविंग रेट कम हो तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल रहता है, राइट। डोंट कॉल इट एज अ रिटायरमेंट प्लानिंग इफ़ यू आर इन योर 20s, आई कैन अंडरस्टैंड। सेकेंडली मैरिज, इंडिया में कितना भी हम कहें कि मुझे जल्दी शादी नहीं करनी या मुझे ऐसी शादी नहीं करनी वैसी शादी नहीं करनी, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ पे वेडिंग ये एक ट्रेडिशन है या एक फैमिली बॉन्डिंग होता है, तो एक कुछ रिचुअल्स के तरीके से शादी करनी ही होती है बहुत बार, और एक तरीके से करनी पड़ती है, तो उसका एक्सपेंस डेफिनेटली होता है। और जब हम खुद पैसा कमाना स्टार्ट करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास अपनी एक कुछ एक्सपेंस हम कंट्रीब्यूट करें। सो सेल्फ मैरिज, बाइंग से व्हीकल, जैसे अगर आपको कुछ अच्छी सी 2 व्हीलर लेनी है, 4 व्हीलर लेनी है, तो आपके फाइनेंशियल गोल हो गए। और रिटायरमेंट प्लानिंग, तो जैसे मैंने कहा कि 3 इमीडिएट गोल आप कंसिडर कर सकते हो। इमरजेंसी फंड को प्लान करना, सेकंड जो मिड टर्म में हो सकती है शादी का सेल्फ मैरिज प्लानिंग, एंड एज वेल एज बाइंग अ व्हीकल, दैट कैन बी योर मिड टर्म और स्मॉल टर्म फाइनेंशियल गोल, एंड गोइंग फॉर अ फाइनेंशियल फ्रीडम कैन बी योर थर्ड गोल। तो ये गोल्स तो हर एक बंदा जो जॉब का पहला दिन या पहली सैलरी जब उसको हिट होती है तब से आपका ये फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग दिस। मैम आपने इमरजेंसी फंड प्लानिंग की बात जी की,
तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं स्पेस में जिन्हें इमरजेंसी फंड के बारे में अच्छे से पता नहीं है। तो द क्वेश्चन इज, इमरजेंसी फंड्स होते क्या हैं? उनको कैसे रखना चाहिए? कहाँ रखना चाहिए? लाइक बैंक में, एफडी में, या फिर लिक्विड फंड में? आप इस पे प्लीज बता जी, दो। सबसे पहले तो इमरजेंसी फ़ंड क्या होता है? इमरजेंसी फ़ंड ये वर्ड ना पोस्ट कोविड या कोविड के टाइम पे बहुत क्या कहते हैं ना, बहुत ब्राइटली लोगों को समझ में आया या डीपली उन्होंने इसके बारे में समझा। देखिए, इमरजेंसी फ़ंड मतलब एक ऐसा अमाउंट अपने बाजू में रखा है जो किसी भी तरीके की इमरजेंसी को फेस करने के लिए आपको एक ताकत देता है। इमरजेंसी क्या हो सकती है? तो सबसे पहले इमरजेंसी हमारा स्टॉपेज ऑफ इनकम होगा, राइट? इफ़ यू आर इनटू जॉब एंड यू लूज़ योर जॉब सडनली, तो आपका इनकम स्टार्ट हो गया। इफ़ यू आर रनिंग अ बिजनेस एंड इफ देयर इज़ अ सडन डिक्रीज इन से डिमांड, या आपको फ्रीलांसिंग है, आपको प्रोजेक्ट्स ना मिल रहे हो, और कोविड के टाइम पे ऐसे ऐसे जिनकी शॉप्स थी, राइट, उनको वो शॉप बंद करके ही रखनी पड़ी, तो इन लोगों का सडन डिक्रीज हो गया इनकम में, राइट? सो दैट इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग कि हमारा इनकम बंद हो जाएगा। बंद हो गया समझो, लेकिन एक्सपेंसेस तो कभी बंद नहीं होते, राइट? बेसिक एक्सपेंसेस तो हमें करने ही होते ज़िंदगी जीने के लिए। सो ये सिचुएशन कैन बी कंसिडर एज अ इमरजेंसी इवेंट। सेकेंडली, मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। सो इवन इफ अ पर्सन मे बी हैविंग मेडिकल इंश्योरेंस, लेकिन अगर अचानक से आपको ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा जहाँ पे कैशलेस फैसिलिटी नहीं है, तो आपको खुद को कुछ स्टार्टिंग में पैसा खर्चा करना पड़ता है, फिर आप रीइम्बर्समेंट के लिए टाइम लगता है 2-3 महीने। तो तब तक समझो आपको सस्टेन करना है, तो आपको इमीडिएट खर्चा करना पड़ेगा। तो दैट कैन बी द इमरजेंसी, राइट? अगर आपके फैमिली में कुछ इवेंट हो गया और आपके लव्ड वंस को आपको पैसे देने पड़े, तो दैट कैन बी इमरजेंसी। तो ये इमरजेंसी हमें कभी भी बोल के नहीं आती। वी जस्ट कांट से कि व्हेन द इमरजेंसी इज गोइंग टू knock our door. It can be tomorrow, it can be today, it can be after 6 months, or even it can be after 5 years. But you have to be, you should always be ready to face such emergency. तो इमरजेंसी फंड एक कंसेप्ट या एक फंड या एक एलोकेटेड अमाउंट है जो अपने बाजू में रखी है, एंड दैट इज़ नॉट मैप्ड विद एनी ऑफ योर फाइनेंशियल गोल्स, राइट? लोग कहते पैसा तो पैसा है, मैं कहीं पे भी रखूँ, मैं कभी भी निकाल सकूँ, तो ऐसा नहीं होता है। व्हेन यू फॉलो गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, देयर इज़ अ प्रॉपर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर you are going to give to your finances. So same example I will give. If you are able to say save 100 rupees, right? So from 100 rupees you are keeping aside 20 rupees as an emergency fund. You are keeping aside 20 rupees for your marriage purpose. You are keeping aside 30 rupees for buying a vehicle, and remaining you are putting for your financial independence, right? So this segregation will give you a peace of mind, and you know that okay, this 20 rupees is only for the emergency. If something comes, I can come take out this 20 rupees and face the emergency. So in that case you really don't need to worry about the remaining 80 rupees which you are doing for your or investing फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। जब आपके दिमाग में ये क्लैरिटी नहीं होती, तो बहुत बार हमें हमारे फाइनेंशियल गोल्स जो है उसके इन्वेस्टमेंट को तोड़ना पड़ता है, या फिर आपने अगर ऐसे पैसे असाइड नहीं रखे होते हैं, तो और सभी पैसा अगर आपने रिस्की एसेट क्लास में डाल दिया रहेगा, तो फिर आपको लॉस में वो पैसा निकालना पड़ता है। सो इमरजेंसी फ़ंड जो पैसा होता है वो नॉर्मली एक थंब रूल के हिसाब से 6 मंथ्स का आपका मंथली एक्सपेंसेस होना चाहिए। उसमें अगर आपके कुछ EMIs हो वो भी इंक्लूडेड होने चाहिए, और मैंडेटरी जो खर्चे होते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट, टैक्सेस, राइट, ये सब जो होते हैं उसका भी एक प्रोपोर्शन आप निकाल के रखिए। और इसको कहाँ रखना है? यू शुड नॉट इन्वेस्ट इट इन एनी सॉर्ट ऑफ रिस्की एसेट क्लास। हियर इम्पॉर्टेंस इज़ दैट द लिक्विडिटी, मतलब कितने जल्दी आप इस इमरजेंसी फंड को लिक्विडेट कर पा रहे हो, राइट? कितने जल्दी उसको आप अपने अकाउंट में या उसको इनकैश कर सकते हो। तो इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट आपको चुनने हैं। तो सबसे बढ़िया इंस्ट्रूमेंट होता है कि आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखिएगा, 1/3 आप लिंक्डइन FD कर दीजिएगा, और 1/3 आप लिक्विड फंड में रखिएगा। अगर आपका इमरजेंसी फंड काफ़ी बड़ा है, एंड इफ़ यू आर इनटू 30% टैक्स ब्रैकेट, यू कैन ऑल्सो यूज़ आर्बिट्राज। आर्बिट्राज फंड से आपको
टैक्सेशन का फ़ायदा मिलता है, राइट। लेकिन इमरजेंसी फंड में रिटर्न और टैक्सेशन इस चीज़ों को न ज़्यादा देखते हुए, उसको तजर्बा न देते हुए इम्पोर्टेंस होता है लिक्विडिटी। तो उस हिसाब से आपको इमरजेंसी फंड का प्लानिंग करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर आंसरिंग दिस। मैम जैसे आपने अभी इमरजेंसी फंड के बारे में हमें बताया, तो जैसे अगर कोई अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर रहा है, तो फिलहाल ऐसा बहुत बार होता है क्रिप्टो की वजह से काफी सारे लोग फोमो में चले जाते हैं, कुछ लोग इन्वेस्ट भी कर देते हैं, कुछ लोग के पास जैसे दे डोंट हैव इमरजेंसी फंड सफिशिएंट, और अगेन जो भी उनके पास इनकम है उसमें से वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यू आप क्या सजेशन दोगे इस पे? जैसे अगर किसी के पास जो भी मनी है वो उसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए सारा अमाउंट, या फिर उसे क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर नहीं करना चाहिए? जी, नॉर्मली अगर आपको पता है या सबके एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि नॉर्मली 5 हम एक एसेट क्लास से जो बेसिक या इम्पॉर्टेंट एसेट क्लास करके कंसिडर किए जाते हैं। एक है कैश इक्विवेलेंट, सेकंड है इक्विटी, थर्ड है डेट, फोर्थ है गोल्ड एंड फिफ्थ इज़ रियल इस्टेट। इसमें क्रिप्टो बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टो ये बहुत नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, और आपने देखा होगा कि जिस हिसाब से क्रिप्टो में ब्लंडर आया, जितना वो जल्दी से ऊपर चढ़ा उतना वो ज़ोर से नीचे गिर गया, और उसमें जो अभी लॉसेस हुए हैं, राइट, वो मतलब रिकवरेबल भी नहीं है बहुत लोगों के लिए। परसों ही मैं एक न्यूज़ देख रही थी कि उस न्यूज़ में दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से इस पे बहुत रिजिडिटी दिखाई थी कि एक्सेप्टेंस के लिए, इंडियन इन्वेस्टर के लिए, जैसे इसको रेगुलराइज नहीं किया, राइट, इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको 30% टैक्स लगा दिया, तो बहुत लोगों ने तब गवर्नमेंट की आलोचना की थी। लेकिन क्रिप्टो में जो ब्लंडर हुआ है उसका जो डिक्रीज़ हुआ है अमाउंट, उसके बाद एक रिपोर्ट निकल के आई है कि सरकार ने इस तरीके से स्टेप लिया या रिजिड था इसको एक्सेप्ट करने के लिए एज अ फॉर्मल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसके वजह से लाखों लोगों के करोड़ों रुपए बच गए। सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका पैसा आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको समझना चाहिए कि जो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ अ रेगुलराइज्ड वन, वेदर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ हिस्ट्री, राइट, जिसको मैं बैक टेस्ट कर पाऊँ, जिसके लिए मैं कुछ पास्ट परफॉर्मेंस देख पाऊँ। फिर जैसे मैंने कहा रेगुलराइज्ड होना बहुत ज़रूरी है, कि रेगुलराइज से क्या होता है कि उसके पास एक तरीके का ग्रीवियंस रिड्रेसल होता है, राइट। जैसे अभी म्यूचुअल फंड या हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट के लिए सेबी है, राइट, बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल मार्केट को बहुत बार देखता है कि कुछ किस तरीके से इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें रेगुलराइज्ड है, आपके पास ग्रीवियंस रेज करने के लिए कुछ सिस्टम है। क्रिप्टो में ऐसा कुछ नहीं है, राइट। वो जो सब चेन काइंड ऑफ जो सिस्टम होता था, उसको देखने वाला कोई नहीं, बहुत बार कहाँ से कहाँ पैसे जा रहा है कुछ पता नहीं होता। सो डेफिनेटली आगे चल के ये वन ऑफ द एसेट क्लास कंसिडर हो सकता है, लेकिन जब तक वो रेगुलराइज नहीं हो रहा है, आप जस्ट फॉर सेक ऑफ वेल्थ क्रिएशन या एक्सेलरेशन करने के लिए क्रिप्टो को सोचे, ये मैं नहीं एडवाइस करूँगी। मैं कभी भी मेरे किसी भी क्लाइंट को, कितना भी उसके पास पैसा हो या ना हो, मैं कभी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की एडवाइस नहीं देती हूँ, बिकॉज फॉर मी आई एम स्टिकिंग दिस बेसिक 5 एसेट क्लासेस, जिसमें आपने इन्वेस्ट किया तो भी आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कुछ फैंसी आइटम हमेशा मेरे किटी में होने चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बेसिक प्रोडक्ट के साथ आप इन्वेस्ट करेंगे। इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से, कितने देर तक इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना सूझबूझ से इन्वेस्ट कर रहे हो, और कितना डिसिप्लिन से इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रोडक्ट कौन सा है, या किस बहुत फैंसी प्रोडक्ट है, बहुत हाई फंडा प्रोडक्ट है, उससे ही मेरा वेल्थ क्रिएट होगा। अगर ऐसा होता तो हमारे मॉम डैड जिन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, वो नहीं कर पाते। उन टाइम पे तो इक्विटी भी नहीं था, राइट, वो तो बैंक एफडी और बेचारे छोटा मोटा गोल्ड लेके या रियल एस्टेट से ही काम चला रहे थे। लेकिन उन्होंने भी बहुत कंटेंट लाइफ जी है। हमें भी कभी ऐसे एहसास नहीं दिया कि हम जब बचपन में हमारे पास कुछ कमी थी, राइट। तो उसी तरीके से है, नए एसेट क्लास को
समझ बूझ के एक बार जैसे रेगुलराइज होने के बाद एक्सपेरिमेंट करना बहुत अलग होता है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा ओनली इक्विटी में डालो, ओनली क्रिप्टो में डालो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन. एंड फॉर दैट एसेट एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कौन से एसेट क्लास में मेरे गोल के हिसाब से मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं. थैंक यू सो मच मैम, इट वाज वेरी यूजफुल. मीनवाइल अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, एंड आप ऊपर भी आ सकते हो, हैंड रेज कर सकते हो, एंड यू कैन आस्क प्रीति मैम अबाउट इट एज वेल. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू प्रीति मैम इज कि आपने मेंशन किया हाउ क्रिप्टो इज क्वाइट रिस्की, वेरी रिस्की इन फैक्ट. तो लोग घुस जाते हैं उसमें, एंड क्रिप्टो में भी हो सकता है, स्टॉक में भी हो सकता है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड देयर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, राइट? तो रिस्क असेसमेंट नहीं करते वो अपना, वो समझते नहीं है कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूँ. तो क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए उन्होंने 100 रुपये स्टॉक मार्केट में लगाए और 2 दिन बाद वो 70 रुपये हो गए, तो फिर ऑफकोर्स उनको रात को नींद आनी बंद हो जाती है. ऐसा भी कई केसेस होता है. जी. तो इस केस में एक रिस्क एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी बन जाता है. तो मेरा ये क्वेश्चन है कि रिस्क एनालिसिस टेस्ट तो बहुत सारे हैं इंटरनेट पे, इज दैट एनफ या फिर देयर इज समथिंग एल्स दैट यू नीड टू डू in order to understand कि आपका risk appetite कैसा है? Yeah, definitely. So self-risk assessment is very important step in financial planning. Okay, how can one carry out a self-risk assessment? There is a formal way to do so. The similar way जो आपने कहा, right, कि online बहुत सारे questionnaires available होते हैं, right? So one can go with that questionnaire prepared or shared in the say जो आपके websites है या उस टाइम पे, या फिर आप एक प्रॉपरली एक एक्सपर्ट के पास अगर गए, समझो जैसे मैं एक फाइनेंशियल प्लानर हूँ और आप मुझसे जुड़े, तो एक मेरे पास एक रिस्क असेसमेंट क्वेश्चनर ऑलरेडी होता है, राइट? तो उसमें क्या होता है कि यू नीड टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ इन्वेस्टर या रिस्पॉन्सेज ऑफ माई क्लाइंट. व्हाट आई डू that I will convert them into the score that may classify them under different categories, और उस हिसाब से फिर कैरेक्टराइज होता है कि आपका रिस्क प्रेफरेंस क्या होता है. बहुत बार लोगों को लगता है कि रिस्क प्रेफरेंस मतलब मैं यंग हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, मैं मिड एज में हो गया तो ये 50-50 हो गया, और मैं रिटायरमेंट में हो गया तो ये 100% डेट में हो गया. ये थंब रूल है या एक थेरोटिकल वे से आप इसको एक मैक्रो लेवल में देख सकते हैं. लेकिन रिस्क असेसमेंट या एसेट एलोकेशन जब हम गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में करते हैं तो ये बहुत पिक्यूलियर माइक्रो लेवल पे इसको स्क्रूटिनी करते हैं हम, राइट? कि जैसे समझो एक यंगस्टर है, राइट, या उसकी एक इन्वेस्टमेंट हिस्ट्री क्या है, तो किस बैकग्राउंड से आया है, राइट? बहुत बार इक्विटी एलोकेशन यंगस्टर बहुत कर सकते हैं, लेकिन वो एक ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से या ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिन पे जिन्होंने देखा है कि उनके मॉम डैड ने इक्विटी में बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, तो वो एकदम रिस्क एवर्स हो जाते हैं. वो देखते हैं कि बिकॉज ऑफ ह्यूज लॉसेस जो मेरे पेरेंट्स ने बेयर किए हैं, उसके वजह से हमारा जो लिविंग या हमारा लाइफस्टाइल था वो ड्रास्टिकली डाउन हो गया, हमें बहुत इसका नुकसान हो गया. सो सच पीपल आर वेरी रिस्क एवर्स. या एक ऐसे भी सेट ऑफ यंगस्टर्स होते हैं जिन्होंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं होता है ज़्यादा. वो कहते कि मेरे मॉम डैड ने तो कभी इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया, फिर भी हमारा सब अच्छा हुआ, तो वाई आई शुड टेक अननेसेसरी रिस्क, राइट? कोई ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि इट्स सट्टा बाज़ार, पैसे डालो दूसरे जगह पे दूसरे 2-4-5 दिन में डबल होके आता है. ऐसे भी लोग इस तरीके से भी बिलीव करते हैं, राइट? तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है. जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं हमेशा उसका पूरा प्रोफाइलिंग करती हूँ. सो रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिसाइड करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्सपर्ट टू डू द होलिस्टिक प्रोफाइलिंग ऑफ द क्लाइंट, कि क्या है उसका एज, उसका एजुकेशन क्या है, उसकी आज की सैलरी क्या है, उसके फ्यूचर सैलरी जनरेशन की कैपेसिटी कितनी है, सस्टेनेबिलिटी कितनी है, अगर आगे चल के कुछ जॉब लॉस हो गया तो कितने जल्दी उसको दूसरा जॉब मिल सकता है, उसके प्रीवियस इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैसा था, राइट? उसके बाद आगे चल के उसके फाइनेंशियल गोल्स की टाइम होराइजन कितनी अलग अलग है, राइट? और डेफिनेटली उसके पास एज ऑन डेट कितना नेटवर्थ है, या ही स्टार्टिंग विथ अ डेट, राइट? जैसे एजुकेशन लोन हो गया या पर्सनल लोन हो गया,
तो उस हिसाब से आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी डिसाइड करनी होती है। अगर आप ये खुद कर रहे हो तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, जैसे एक सेट ऑफ क्वेश्चंस ऑनलाइन इस पे है तो आप उसके आंसर दे दो, वो तो रोबोट है तो बाकी चीज़ों को आपका पूछेगा भी नहीं और आपको पता भी नहीं, तो वो आपको एक निकाल के देगा कि यू आर वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर। एग्रेसिव मतलब लोगों को लगता है 100% आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन इक्विटी, राइट। और जैसे आपने कहा कि आज इन्वेस्ट किया, 2 दिन के बाद मार्केट गिरा तो बस हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से मत कीजिए, आप पहले खुद को भी समझ लीजिए कि वेदर सच काइंड ऑफ वोलेटिलिटी इज़ ईजिली डाइजेस्टेबल फॉर मी, वेदर आई हैव अ क्लियर थॉट्स कि ये पैसे मुझे 20 साल के बाद लगेंगे, तो आज भी अगर मेरा पोर्टफोलियो रेड में है तो मुझे डरना नहीं है। ये सब चीज़ें अगर आप खुद समझ रहे हो और ख़ुद को बता के आपके मन को शांत कर सकते हो, तभी आप एग्रेसिव इन्वेस्टर कहलाएंगे। एग्रेसिव का मतलब ये भी नहीं कि आपका ईच एंड एवरी पेनी शुड बी 100% इन इक्विटी। एग्रेसिव मीन्स you can go up to 70% of equity. I never ever ask my clients to go beyond that. Better you have some portion in debt asset class, राइट, जिससे आपको एक सपोर्ट मिलता है डाउन टर्न में, राइट। और आप ग्रीड में नहीं चले जाते कि पैसा डबल हो रहा है या पैसा बढ़ रहा है तो बस मैं इसी के पीछे भागूं, ठीक है। तो रिस्क असेसमेंट आप ऑनलाइन करो, ठीक है, लेकिन खुद भी कर लो। और बहुत अगर आपको कन्फ्यूजन है तो किसी एक्सपर्ट का गाइडेंस लेना हमेशा अच्छा ही रहता है। Thank you so much, ma'am, for sharing all of these things. These details are very very important. हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। मैम, जैसे आपने लोन्स के बारे में कहा, तो एक चीज़ जो डेब्ट होती है, दिस इज़ समथिंग जिस पे लोगों को नॉलेज डेफ़िनेटली होना चाहिए। काफ़ी लोगों को होती है, काफ़ी लोगों को नहीं होती है। हमें पता नहीं होता एट अ सर्टेन एज इन आवर लाइफ दैट डेब्ट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, या फिर अवॉइड करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। For example, there are these loans like house loan, then car loan. तो ये सारे लोन्स अगर कोई लेना चाहता है तो किससे ले, मतलब लाइक कब लेना चाहिए? आपके पास हाउ मच फंड शुड बी देयर? या फिर अगर कोई हाउस लोन ले रहा है या फिर कार लोन, बहुत सारे सिचुएशंस में मैंने ऐसे केसेस पढ़े हैं जहाँ पे किसी ने जैसे कार लोन लेके कार खरीद दिया, बट उस टाइम पे आपने ईएमआई पे खरीद दिया, लेटर ऑन कार की मेंटेनेंस में इतना सारा खर्चा जाता है जिसकी वजह से वो उसे मेंटेन नहीं कर पाते। They don't have sufficient amount of money with करेक्ट, them, so they can maintain all those expenses. So that is again a very difficult phase of a person's life. तो आप इस पे क्या सजेशन दोगे? डेफिनेटली। एक सेंटेंस में बताना चाहूँगी कि दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, द फर्स्ट थिंग दे शुड एम एट टू बी अ डेट फ्री। ओके, आप डेट लेके बैठे हो और आपको फाइनेंशियल फ्री होना है या खुद को फाइनेंशियल फ्री कहलाना है, तो ये नहीं हो सकता। इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी थिंग। सो इम्पॉर्टेंट है कि आपको डेट फ्री या डेट एक कंट्रोल में रहे। आगे चल के डेट लेना ही नहीं है, ये भी नहीं बोल रही हूँ मैं। डेट आपको आप ले सकते हैं, लेकिन कौन सा डेट ले रहे ये समझना बहुत ज़रूरी है। डेट 2 प्रकार के होते हैं, एक उसको कहते हैं गुड डेट और बैड डेट, राइट। व्हाट डू मीन बाय गुड डेट? तो गुड डेट वो होता है जो आपको एसेट्स क्रिएट करने में हेल्प करता है। जैसे अभी आपने होम लोन की बात की, राइट। तो डेफिनेटली अगर आप होम लोन ले रहे हो, नॉर्मली आई डोंट एडवोकेट गोइंग फॉर अ होम लोन फॉर अ इन्वेस्टमेंट पर्पस, राइट। फर्स्ट तो आप आपके घर के कंजम्पशन के लिए घर लेना चाहते हो, तो दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकेंडली आप पहले आपके सब फाइनेंशियल गोल्स को फंड करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद एक्सेस मनी अगर आपके पास है, इनफ एक्सेस है आपके पास, लिक्विडिटी मतलब आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो उस टाइम पे यू मे थिंक ऑफ एडिंग वन मोर रियल इस्टेट और कमर्शियल प्रॉपर्टी। और उसके लिए अगर आप डेट ले रहे हो तो इसमें ये एप्रिसिएटिंग एसेट क्लास है, एप्रिसिएटिंग एसेट्स आप क्रिएट कर रहे हो, तो होम लोन एक गुड डेट हम उसको कहते हैं। सेकंड होता है एजुकेशन लोन, राइट। बहुत बार स्किल अपग्रेड करने के बाद आपका इनकम बढ़ने के चांसेस काफ़ी होते हैं, आपको नए स्किल मिलते हैं, उसके वजह से आपके बहुत सारे फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बढ़ते हैं, तो उस तरीके का लोन भी बहुत अच्छा है।
लेकिन ये समझ के लेना बहुत ज़रूरी है, देखना है कि ये पर्टिकुलर कोर्स या पर्टिकुलर जो स्किल डेवलपमेंट कोर्स है उससे मुझे सच में फ़ायदा होगा कि नहीं। लेकिन अगर हो रहा हो तो दिस इज़ ऑल्सो गुड थिंग टू डू। और थर्ड है बिजनेस या कैपिटल, जो लोन कहते हैं ना, बिजनेस डेवलपमेंट लोन। अगर वो आपने लिया और उसकी वजह से आगे चल के आपकी इनकम या आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है, तो इस तरीके का लोन भी आपको लेना है चाहिए, या इस तरीके से लोन से आपको फ़ायदा होगा। तो इसको कहते हैं गुड डेट, राइट। ये डेट से आपको आगे चल के डेफिनेटली फ़ायदा होगा। लेकिन बैड डेट, अगर आप क्रेडिट कार्ड पे लोन ले रहे हो, आप पर्सनल लोन ले रहे हो, अगर आप कार का लोन ले रहे हो अननेसेसरी, राइट। अगर कार की बात चल रही है तो मुझे लगता है आप सब लोगों ने मर्सिडीज़ के सीईओ का सेंटेंस सुना होगा, राइट, कि people are not buying Mercedes just because they are doing SIP, राइट। तो इस पे मुझे मनी कंट्रोल वालों ने पूछा था, तो मैंने सबसे पहले कहा कि मर्सिडीज़ लेने के लिए वेदर आई एम एलिजिबल, और रादर ओनली मर्सिडीज़ लेना 65 लाख्स की या 75 लाख्स की मर्सिडीज़ लेने के बाद जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है, सेम थिंग श्रुति मेंशन, कि वो मैं कर सकता हूँ क्या, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सो इट्स नॉट ओनली द वन टाइम कॉस्ट आपको देखना है कार के बारे में, बट द रिकरिंग कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, फिर फ्यूल मेंटेनेंस, अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन या कुछ बाकी जो खर्चे हैं वो सब देख के आपको तय करना होता है कि मैं कार लूँ या नहीं, या लूँ तो कौन से ब्रांड की लूँ और किस हिसाब से लूँ। तो लोन मैनेजमेंट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको आपका जो EMIs है, सब EMIs पकड़ के, राइट, होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन या और कुछ एजुकेशन लोन या और कुछ लोन को सबको पकड़ के 40% ऑफ योर इन हैंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक थंब रूल में आपको सबको बताती हूँ कि 1/3 सेविंग, 1/3 एक्सपेंसेस एंड 1/3 EMI, अगर ये आप फॉलो करेंगे, राइट, तो आपका लाइफ सेटल हो जाएगा, आपको बहुत चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो 33% से ज़्यादा आपकी कोई भी एक्सपेंस, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट एक्सपेंस एंड लोन ये ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आपका EMI नहीं है तो भी आप अगर 35 to 40% एक्सपेंस रखते हो तो आपका सेविंग रेट डायरेक्ट 60% हो जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 33% या 35% सेविंग तो करना ही है। तो इस हिसाब से 1/3 इज़ वॉट यू कैन कंसिडर एज योर EMI का जो लास्ट या सबसे ऊपर वाला रेंज है उस हिसाब से। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए ही कोई भी चीज़ कमिट करो। घर लेना है तो पहले बजट देखो, कितना EMI आप अफोर्ड कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है तो बढ़ने वाला EMI में एकोमोडेट कर पा रहा हूँ या नहीं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपने कार तो ले ली EMI पे, लेकिन जो बाकी खर्चे हैं वो आप कर पा रहे हो कि नहीं, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो डेट मैनेजमेंट या डेट ट्रैप में अगर आप फंस गए क्रेडिट कार्ड लोन या कुछ ऐसे कुछ लोन में, तो बहुत नुकसान हो सकता है और उसका एक फ्रस्ट्रेशन अलग ही होता है, राइट। सो बेटर नॉट टू गो विद फॉर दिस। That all makes so much sense, ma'am. And next, I'll take the audience questions जो health insurance के around है, and मेरा question भी वही था. तो I'll ask you एक साथ ही कि health insurance के लिए if people want to take a health insurance जो कि बहुत absolute must है, even if you are a very young and आपने बस अपना जर्नी स्टार्ट किया है, let's say कि आपने ऑफिस का भी स्टार्ट किया या कॉलेज में भी, हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट कंसिडरिंग कि मेडिकल इन्फ्लेशन जिस तरीके से राइज हो रहा है, इट इज़ एन एब्सोल्यूट मस्ट हो जाता है. तो मैम, हाउ शुड वन सिलेक्ट अ हेल्थ इंश्योरेंस, एंड कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है और उस कंपनी का भी एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है कवरिंग देयर फैमिली मेम्बर, क्या वो एनफ होता है? एंड इसी के साथ साथ व्हाट पैरामीटर्स शुड पीपल सी इन सिलेक्टिंग अ हेल्थ इंश्योरेंस, ये एक है. ये वाला मेरा क्वेश्चन है, बट एक उसके साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको एडिशनली भी पूछ लेता हूँ कि क्रिटिकल इलनेस का भी एक इंश्योरेंस होता है, तो वो एड ऑन है या फिर एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस लोगों को लेना पड़ता है? सो इफ यू कैन कवर ऑल दीज Yeah. क्वेश्चंस. या So health insurance is very important insurance everyone should have, right? बहुत बार फाइनेंशियल प्लानिंग को
ओनली इन्वेस्टमेंट के तौर से देखा जाता है। सबसे पहला अगर फाइनेंशियल प्लानर दिखे तो लोग पहले एक ही बात पूछते हैं कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, राइट। एक्चुअली फाइनेंशियल प्लानिंग सिर्फ इन्वेस्टमेंट को सोच के नहीं किया जाना चाहिए। दैट इज़ नॉट ओनली, उतना ही उनका दायरा नहीं है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग टू मेन पिलर पे खड़ा होता है, एक है इन्वेस्टमेंट, सेकंड है इंश्योरेंस प्लानिंग। तो इंश्योरेंस को प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत हमने कोविड में देखी है, राइट। कि कोविड में समझो पूरे घर का घर के पूरे मेंबर और पूरा घर अगर समझो बीमार पड़ गया तो, और इंश्योरेंस नहीं है इस टाइम पे, तो लोगों को मतलब अपना पूरा सेविंग ड्रेन आउट करना पड़ा। तो इंश्योरेंस आपको इस बारे में हेल्प करता है। हेल्थ इंश्योरेंस का थंब रूल ये है कि जितने जल्दी आप ये इंश्योरेंस निकालोगे, जितना फिट एंड फाइन रहेंगे, उतना इजीली आपको ये इंश्योरेंस मिल जाता है। और कोविड के बाद अभी काफ़ी कंपनियां बहुत स्ट्रिंजेंट हो गई है, राइट। पहले बहुत इजी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता था, अभी दे आर ऑल्सो वेरी रिजिड इन सिलेक्टिंग द लाइफ्स, राइट। तो कुछ मुझे डिसीज़, लाइफस्टाइल डिसीज़ होने से पहले ही, जब तक मैं फिट एंड फाइन हूँ, तब मुझे इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर ले लिया मैंने तो बहुत बढ़िया रहता है। हेल्थ इंश्योरेंस में कभी कभी कुछ क्लॉजेस होते हैं, जैसे आपके प्री एग्जिस्टिंग डिसीज़ेस के हो गए, वेटिंग पीरियड हो गया, तो इसके लिए आपको कुछ साल इंतज़ार करना पड़ता है। या कभी कभी समझो मेरी फीमेल लिसनर्स हैं, राइट, जो जिन्होंने अभी जॉब स्टार्ट किया और कुछ सालों के बाद, शादी के बाद कुछ सालों के बाद वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है और उसके एक्सपेंसेस वो समझो हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम करना चाहती है, तो उसको एक 4-5 साल का वेटिंग पीरियड होता है। मतलब आपने इंश्योरेंस लेने के बाद यू कांट क्लेम इमीडिएटली डिलीवरी एक्सपेंसेस, राइट। तो इस तरीके से करने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो ये सब चीज़ें तभी आप कर सकते हो जब आपने इंश्योरेंस यंग एज में ले लिया हो, राइट। तो जैसे अगर आप कॉलेज में हो तो बहुत बार आपके पेरेंट्स के इंश्योरेंस के साथ आपका हो जाता है, लेकिन जब आप खुद इंडिपेंडेंटली कमाना स्टार्ट करते हैं, कंपनी का इंश्योरेंस होता है, बहुत लोगों को लगता है कि वही बहुत सफिशिएंट है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि आपका जॉब जब तक है तभी तक ही आपका हेल्थ इंश्योरेंस है कंपनी के तौर पे, राइट। जिस दिन आपका जॉब चला गया, उनका कवर चला गया। और बहुत बार तो ऐसा मेरे पास एक क्लाइंट आया था जिसने स्विच किया था और बीच में उसने 10 दिन की छुट्टी ली थी कि 10 दिन की छुट्टी में कहीं जाके आऊँगा, और वो ट्रैवलिंग को गया और तभी उसके साथ एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए उसको 10 दिन का जो गैप था, उसी में उसके पास कुछ इंश्योरेंस नहीं था और उसको वो सब खर्चा खुद के पॉकेट से करना पड़ा। तो हेल्थ इंश्योरेंस खुद का होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितने जल्दी आप ले सके उतना लो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये हैं कि कंपनी का क्लेम रेशो कैसा है, फिर उसके बाद नो कैपिंग होना चाहिए, नो रेंट कैपिंग होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ को पेमेंट, राइट, हैपनिंग। फिर उसके बाद सब तरीके के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ है, मतलब एलोपैथी हो गया, फिर इसके बाद नेचुरोपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, ऐसे ट्रीटमेंट भी अगर कंसिडर कर रहे हो वो देखना बहुत ज़रूरी है। प्री और पोस्ट टाइम सर्जरी के आपको किस तरीके से सपोर्ट करता है आपका इंश्योरेंस प्लान, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। एंड डेफिनेटली वेटिंग पीरियड कितने हैं, राइट, कि कितना साल वेटिंग पीरियड है और कौन से एक्सक्लूजन्स हैं, उसको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। हर एक आपके मेंबर्स, फैमिली मेंबर का इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और इंश्योरेंस होने के बावजूद भी अगर आपके पास आपके फादर मदर समझो एजेड है या सीनियर सिटीज़न हो गए, या खुद के लिए भी एक लिक्विड इमरजेंसी फ़ंड, जो लिक्विड मेडिकल इमरजेंसी फ़ंड तैयार रखना कभी भी बहुत समझदारी की बात होगी। तो आप सिर्फ आपके हेल्थ इंश्योरेंस पे डिपेंड नहीं रहते। जैसे मैंने कहा, बहुत बार एम्पेल्ड हॉस्पिटल हमारे घर से दूर होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे अगर हमें इमीडिएटली कौन से भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो आपके पास अगर पैसे हैं तो आप उसको
पहले खर्चा करके फिर रियम्बर्स कर पाएंगे। सो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस होना और थोड़ा लिक्विड पैसे हेल्थ इमरजेंसी के लिए रखना। थैंक यू सो मच मैम, दिस वाज वेरी इंसाइटफुल। तो अभी हेल्थ इंश्योरेंस तो हो गया, एक और इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है विच इज़ लाइफ इंश्योरेंस। तो विच स्टेज ऑफ लाइफ एक पर्सन को लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए? एंड क्योंकि इतने सारे टाइप ऑफ टर्म इंश्योरेंस है, कुछ इंश्योरेंस जो बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के साथ साथ आपका टर्म इंश्योरेंस भी हो जाएगा, कुछ इंश्योरेंस है जो प्रॉमिस करते हैं कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी हो जाएगा आपको, फिर एंडोरमेंट प्लान्स होते हैं। इतनी सारी कंफ्यूजन के बीच में कैसे कोई सिलेक्ट करे कि कौन सा लाइफ इंश्योरेंस वन शुड गो फॉर एंड ऑप्ट फॉर? तो इस पे थोड़ा सा अगर आप लाइट शेयर करेंगे मैम। आपके लास्ट क्वेश्चन का एक पार्ट रह गया, सॉरी अभी याद आया, क्रिटिकल इलनेस, राइट। तो देखिए क्रिटिकल इलनेस जो कंसेप्ट है ना, बहुत बार लोग इसको ठीक से समझ नहीं पाते। काइंडली अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल इलनेस जो राइडर या पॉलिसी होती है दैट इज़ नॉट मैंडेटरी। यू मे बी हियरिंग और आपको लगता है ये शॉक जैसा आपको आ गया, लेकिन इसका कारण मैं बताती हूँ। क्रिटिकल इलनेस का क्या मतलब हुआ कि आपको एक इस तरीके से डिसीज़ हुआ है और डॉक्टर ने ऐसे डायग्नोज किया है कि आगे 1 महीने तक ही आप ज़िंदा रह सकते हो, उसके बाद देयर इज़ नो चांस, राइट। आपके पास सिर्फ 1 महीना है। इस तरीके से अगर डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया और इस तरीके से रिपोर्ट अगर बनाई तो क्रिटिकल इलनेस जो आपने लिया हुआ है प्लान या राइडर अगर आप ले रहे हो तो वो पिक्चर में आएगा। जब तक आपको डॉक्टर इस तरीके से लिख के नहीं देगा तो ये पिक्चर में नहीं आता है, राइट। जब आपके पास 1 ही महीना बाकी है तो उसके बाद ये पॉलिसी कैसी काम करती है कि वो आपको पूरा पेमेंट कर देगी। समझो मैंने 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस लिया है तो 25 लाख मुझे मिल जाएगा वन टाइम जब डॉक्टर का ये रिपोर्ट मैं सबमिट करती हूँ इंश्योरेंस कंपनी में। तो उस 25 लाख का आपको जो चाहिए वो आप करो। कंपनी इज़ नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आपने क्या किया, आपने ट्रीटमेंट में यूज़ किया या आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स के लिए यूज़ किया, दैट इज़ अप टू यू, राइट। तो इस तरीके से अगर डिसीज़ हुआ है और इस तरीके से ही अगर आपको डॉक्टर ने बताया है तभी क्रिटिकल इलनेस राइडर या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी पे अप होती है। तो इसमें बहुत बार जब हम किसी भी तरीके की क्रिटिकल इलनेस या लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ हो जाती है तो डेफिनेटली हम क्या करते हैं कि इलाज ही करते हैं, राइट। तो वो इलाज हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से भी हो सकता है। सो क्रिटिकल इलनेस इज़ डेफिनेटली नॉट मैंडेटरी, बट इफ़ यू ऑल हैविंग सम काइंड ऑफ हेरिडिटरी प्रॉब्लम सच एज कैंसर की हिस्ट्री है, राइट, हाइपरटेंशन की, या आपके पास आपको समझो आपकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को हार्ट डिसीज़ है और उसकी वजह से डेथ्स हुई है, तो फिर आप इसको लेने का सोच सकते हो। लेकिन अदरवाइज़ आप हेल्थ इंश्योरेंस को ही ज़्यादा बड़ा कवर लीजिए और उसी में आप देखिए कि आपका तो सब तरीके के आपके कम से कम एक्सक्लूजन्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज़ेस कवर हो रहे हो और आपका कवर काफ़ी बड़ा हो, राइट। तो हेल्थ इंश्योरेंस को ही प्रॉपर तरीके से लेना इम्पॉर्टेंट रहेगा, ना कि क्रिटिकल इलनेस को। टर्म इंश्योरेंस में बहुत बार क्रिटिकल इलनेस राइडर की तरीके से बेचा जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड वन। ये सिर्फ कंपनी का पैसे कमाने का तरीका है। टर्म इंश्योरेंस हमेशा प्लेन वेनिला प्लान लेना चाहिए। इसका मतलब विदाउट एनी राइडर यू ओनली टेक अस टर्म इंश्योरेंस। रिटर्न ऑफ प्रीमियम जो आपने बताया दैट इज़ ऑल्सो अ फूलिशनेस वन इज़ गोइंग टू डू। टर्म इंश्योरेंस का क्या मतलब हुआ, जब तक मैं पैसे कमा रहा हूँ, जब तक मुझे फाइनेंशियली डिपेंडेंट कोई है मेरे पे, मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं कमाऊँगी, तो उसकी वजह से किसी को इम्पैक्ट होने वाला है, उसी सिचुएशन में आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत है। सो आपके अगर लिसनर सब समझो यंगस्टर है, तो अगर जब तक वो यंगस्टर है, मतलब आई मीन जब तक वो सिंगल है और जब तक उनके पेरेंट्स उन पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट नहीं है, तो दे डोंट नीड टर्म इंश्योरेंस, राइट। बहुत बार मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो मैरिड है बट दे आर नॉट प्लानिंग एनीथिंग फॉर एनी सच थिंग लाइक किड्स और एनीथिंग, राइट। वो दोनों कमाते हैं, दूजे पे एक दूजे पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है,
नाइदर उनके पेरेंट्स डिपेंडेंट है, दे आर इन देयर 30s 40s but they don't have any plan for starting their family. So in that case as well, term insurance is not needed. So it is not mandatory to have a term insurance unless and until you have somebody जो आप पे फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो. लेकिन अगर एक भी आपके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट हो तो जितने जल्दी आप टर्म इंश्योरेंस लो उतना अच्छा है, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा होगा. सिमिलर, यंग है आप तो आपको डिसीजेस होने के चांसेस कम है, आपका प्रीमियम कम होगा, आपका लॉन्ग ड्यूरेशन जो आप लोगे समझो 30 ईयर्स तक, आपको 55 या 60 तक जॉब करना है तो तब तक आप लो, उससे ज़्यादा नहीं लेना है. जब तक आप कमाओगे उतने तक ही टर्म लेनी है, और उतने तक अगर आप लोगे तो आप कम प्रीमियम में इसको लॉक कर पाओगे. तो टर्म इंश्योरेंस इज़ नीडेड ओनली फॉर दोज हु आर हैविंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन ऑन देम, एंड इसको प्लेन वेनिला में लेना है. रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब क्या हो गया कि जितना मैं प्रीमियम भर रहा हूँ वो मुझे 20-25 साल के बाद वापस मिले. इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता. दूसरी चीज़, आज के 100 रुपये की वैल्यू 10 साल या 20 साल के बाद कुछ नहीं रहेगी, वो डेफिनेटली 10-20 रुपये हो जाएगी. तो उसके लिए मैं क्यों आज ज़्यादा प्रीमियम भरूं. हमेशा रिटर्न ऑफ प्रीमियम बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल प्रीमियम के हिसाब से. तो टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस, दे आर एक्सपेंसेस. द प्रीमियम विच आर पेइंग should be considered as expense, mandatory expense. I should not think anything in return. मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस को भी कभी क्लेम ना करना पड़े, ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए ना. और वैसे ही टर्म इंश्योरेंस को, ये मेरा एक्सपेंस है, मैंडेटरी एक्सपेंस, मैंने कर दिया और मैं भूल गई. इट ऑल मेक सेंस. मैम, आपने बोला था कि कैंसर भी जो है वो भी क्रिटिकल इलनेस के अंदर आता है, बट अगर कैंसर किसी को डिटेक्ट होता है तो वो भी तो अंडर हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता है. डेफिनेटली. उस केस में कैसा होता है अगर अगर ऐसा कुछ कंडीशन आया जहाँ पे एक ऐसा नोन डिजीज है, जो आप क्या कहेंगे कि जैसे कैंसर किस स्टेज पे वो क्रिटिकल इलनेस जैसा ट्रीट होगा और किस केस में नॉन क्रिटिकल वाला होगा, जी, इफ यू जैसे कैन से. जैसे मैंने कहा कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि आपके पास बस 1 ही महीना है, राइट, उसके बाद देर इज़ अ नो चांस ऑफ लिविंग लॉन्गर देन अ मंथ, राइट, तभी आपको क्रिटिकल इलनेस पिक्चर में आएगा. अदरवाइज तो आपको जब भी कैंसर डिटेक्ट हुआ, समझो फर्स्ट स्टेज में ही हुआ और आपने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया, तो वो सब हेल्थ इंश्योरेंस में कवर ही हो रहा है ना. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हेल्थ इंश्योरेंस तो आपको लास्ट तक आपको कवर देगा ही. क्रिटिकल इलनेस को सोच के लोगों को लगता है अरे मुझे ऐसे कुछ हो गया तो क्या होगा. तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हो, आपके फाइनेंशियल गोल्स को ठीक से करो ना. नॉर्मली क्या हो जाता है कि समझो आज मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ, बहुत लेट डिटेक्ट हुआ, 4th स्टेज में हुआ, और मेरे पास बस 1-2 महीने हैं और मुझे मेरे बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचना है. तो तब जो पैसा नॉर्मली मिलता है, people end up providing that for their kids education और अदर फाइनेंशियल गोल्स, और वो खुद पे खर्चा नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि मैं जो कुछ खर्चा करूँगा वो उसका कुछ फ़ायदा अगर नहीं हो रहा है तो इसके बावजूद आप क्या करो कि पहले ही आपके फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करो. पहले ही आप ऐसे देख लो कि जो भी प्रॉपरली मैंने मेरे फाइनेंशियल गोल्स को मैनेज किया है कि नहीं, और मेरा जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो इतना बड़ा है कि मेरे सब तरीके के जो खर्चे हैं उसको कवर हो रहा है कि नहीं. सो क्रिटिकल इलनेस ओनली, क्रिटिकल इलनेस राइडर या क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी अलग है, क्रिटिकल इलनेसेस अलग है. क्रिटिकल इलनेस से डेफिनेटली हेल्थ प्लान में भी कवर होती है और क्रिटिकल इलनेस राइडर में भी, लेकिन राइडर तभी पिक्चर में आएगा जब आपके पास 1 महीने से कम टाइम बचा हो. Can I ask a question now? यस. Hello, thank you, ma'am. I wanted to ask, my daughter is now 19 years and she has gone to the college studying in first year now. I wanted to know, should I take a term plan for her from starting now and a health insurance separately? Or her health insurance should be covered in my family plan and a term plan for her separately? See, term plan, she is only studying, right? So until and unless she start working on herself, and if she's you are not dependent on her financially,
she doesn't need any kind of term insurance, right? Health insurance, definitely there are some companies who offer this health insurance in family floater till kids get independent on their own. Otherwise, some are having 18 years this maximum age of 18 years included in family floater, or 21 years included in family floater, or 25 years included in family floater. So each company is having their own set of rules for covering major kids in the family floater, right? So I think if she's still been covered under your family floater, let it be, right? You don't need to go for a separate plan as of now. And secondly, I always say that once kids are major and when they start earning, parents should not take care of all these things, let them handle. If you do everything for them, when they are going to learn these things, right? So you can suggest that, okay, now you started earning, right? Better to have your own separate health insurance, but ask her to pay premium, right? Ask her to own this. If you are only going to do everything for her, she will not learn, right? So better once she start earning, then she can have her own health insurance. And if you are going to be dependent on her, right, in financial way, when she start earning, then only she can have a term insurance. Okay, thank you, Yeah, ma'am. welcome. Thank you so much, ma'am, for answering that. Ma'am, we have a question Mm-hmm. from comment section. Mm-hmm. The question is from Suchit. He's asking, investing in SGB or gold mutual fund, which is good for gold investment? Yeah, so definitely I prefer SGB. Okay, why I'm preferring SGB is definitely it's having a sovereign guarantee. Secondly, it's a long term product. Okay, in terms of that, if you are buying in from a primary market, then you have to hold it for 8 years at least to claim to it to be the capital free. It means capital gains free, right? So if you are holding SGB for up to the maturity, so whatever gains you are having, right, on that gains you don't need to pay any capital gains tax. long term capital gain tax पे नहीं करना पड़ता. तो एक ये मेजर पॉजिटिव है एसजीबी का. सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, इट ऑफर सॉवरिन गारंटी. और थर्ड है, इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उस पर 2.5% का आपको एनुअल इंटरेस्ट भी मिलता है. सो दैट इज़ द एडिशनल इनकम यू विल बी डूइंग. और सेकेंडली, ये जो पैसा है ये गोल्ड एसेट क्लास को फॉलो करता है, लेकिन यू विल बी गिवन बैक द मनी ओनली, राइट? आपको गोल्ड फॉर्म में नहीं पैसा मिलता. तो उसका अंडरलाइंग पोर्टफोलियो या अंडरलाइंग एसेट क्लास गोल्ड है, लेकिन आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और आपको पैसा ही मिल रहा है. तो ये बहुत अच्छी बात होती है. म्यूचुअल फंड में, गोल्ड म्यूचुअल फंड में एक उसका एडवांटेज ये है कि आप बीच में कभी भी इससे बाहर निकल सकते हो. लेकिन ये बात आप समझ लो, गोल्ड एसेट क्लास में जो रिडम्पशन जब होते हैं, राइट, सो फंड मैनेजर गोल्ड बेचता है, राइट. तो अगर समझो मेरे पास 1 ग्राम है और किसने मुझे बोला कि 1 ग्राम का गोल्ड मैंने बेच दिया, तो बुरा लगता है. इसलिए मैंने कहा, पैसे जब पैसों का पैसा मिल रहा है अलग बात होती है, लेकिन गोल्ड फॉर्म में अगर कोई रिडीम कर रहा है हमारा पैसा, तो गोल्ड हमारा बेचा जाता है जो मेरे हिस्से का होता है. तो इसके लिए गोल्ड म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए आप सोच सकते हो, लेकिन उसका टैक्सेशन जो होगा वो डेट फंड जैसा होगा. सो 3 साल के पहले अगर आपने गोल्ड फंड को बेचा, तो आपका जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है वो आपको लगेगा, मतलब 20 या 30%. और 3 इयर्स के बाद अगर आपने बेचा तो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा. लेकिन एसजीबी में प्राइमरी मार्केट में आपने एसजीबी लिया, तो आपको 8 साल तक आपने होल्ड किया, तो आपको कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं. और अगर आप सेकेंडरी में ले रहे हो, कभी कभी सेकेंडरी में बहुत सस्ते में भी मिल जाता है, डिस्काउंटेड में मिल जाता है, तो उस टाइम पे आपका फ़ायदा क्या है कि आपको होल्डिंग भी कम करनी पड़ेगी. और आपको समझो मुझे 4 साल ही होल्ड करना पड़ा, फिर भी मुझे टैक्स फ्री रिटर्न मिलेगा आगे चल के. सो एचजीबी इज़ ऑलवेज गुड.
ओके, थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज फ्रॉम लर्नर लर्नर एंड एजुकेटर। ही आस्क कि मैम, अगर किसी ने हाउस लोन लिया है एंड बैंक उसके साथ ना लोन के साथ टर्म इंश्योरेंस भी देता है, सो ऐसे केस में व्हेन द पर्सन हैज अ टर्म इंश्योरेंस फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ, तो क्या कस्टमर को एक सेपरेट टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए? सी अगर आपके पास एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस है जिसमें आपने आपकी लाइबिलिटीज़ भी कवर की हो, राइट, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये टर्म इंश्योरेंस दो तरीके के होते हैं, मतलब डिमिनिशिंग टर्म इंश्योरेंस कवर भी कहा जाता है। मतलब जैसे जैसे आप अपने EMI या आपका लोन भरते जाते हो, तो वैसे वैसे उसका कवर कम हो जाता है और उस वैसे वैसे उसका प्रीमियम भी कवर कम होता है। आजकल क्या हो गया है ना कि बैंक एश्योरेंस, आपने सुना होगा ये वर्ड। तो बैंक में आने वाला आदमी, जो भी क्लाइंट या कस्टमर है, वो एक बकरा होता है बैंक वालों के लिए। तो कुछ भी लेने को गए तो इंश्योरेंस वो चिपका ही देते हैं। अगर आपको बस लॉकर लेना है, फिर भी आपको मैंडेटरी यूलिप लेना पड़ता है या FD निकालनी पड़ती है। ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है एज़ पर एक्चुअली RBI और SEBI के रूल्स के हिसाब से, लेकिन लोगों को बोल के कहा जाता है कि ये मैंडेटरी है, इसलिए आपको करना ही है। तो अगर आपने टर्म इंश्योरेंस ऐसा लिया है जो आपके लाइबिलिटीज़ भी कवर कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि आपको सेपरेट टर्म इंश्योरेंस के लिए जाना चाहिए। लेकिन आपका टर्म इंश्योरेंस अगर कम है, राइट, और आप सिंगल अर्नर है और आप पे ऊपर 4-5 लोग डिपेंडेंट हैं, और सेकेंडली ये जो घर है आपका, वो आपका प्राइमरी रेसिडेंट है जिस पे आपका कर्जा है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। और डिमिनिशिंग टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। Thank you so much, ma'am, for answering that. Ma'am, my question is something which is about the credit cards. So the next question मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, that is like, क्या college students को credit card लेना चाहिए? Or in case, if yes, then when should somebody opt for a credit card? Also, how important is holding a good credit score? करें, सी क्रेडिट कार्ड मैंडेटरी है क्या? नहीं मैंडेटरी कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन आपको आगे चल के अगर क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है तो उसका सबसे आसान तरीका है क्रेडिट कार्ड को लेना, उसको टाइम पे करना। लेकिन आप आज कॉलेज में हो एंड इफ़ यू आर नॉट अर्निंग एनीथिंग, राइट, तो क्या होगा? आप खर्चा करोगे, पेमेंट कौन करेगा? आपके पेरेंट्स, राइट। तो अगर आप समझो कॉलेज में हो, राइट, और आप बहक गए, जस्ट फ्रेंड्स अगर खर्चा करे इसलिए मुझे भी खर्चा करना है, ये करना है, आपके लिए वो इजी मनी हो गया, राइट। सी देयर इज़ अ साइकोलॉजिकल थिंग, वो कहते हैं जब हम हार्ड कैश देते हैं ना तो पेन ज़्यादा लगता है, और जब ये प्लास्टिक मनी होता है ना उसका कुछ पेन नहीं लगता। तो लोग एक्चुअली डिजिटलाइजेशन के फेवर में ही हूँ मैं, राइट। लेकिन जब हमें एक्सपेंस मैनेजमेंट सिखाना पड़ता है लोगों को, या सेविंग हैबिट सिखानी पड़ती है, तब मैं लोगों को बताती हूँ कि आप सब तरीके के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कुछ देर के लिए बंद करो और हार्ड कैश को खर्चा करना स्टार्ट करो। तब आपको समझेगा कि सच में कि मैंने जो पैसे निकाले वो एक्चुअली मेरे पॉकेट से कम होते जा रहे हैं। जब तक हम हमारा बैंक ट्रांजैक्शन वंस इन अ मंथ नहीं देखते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या क्या खर्चा कर दिया। तो अगर आप नहीं कमा रहे हो खुद, तो क्रेडिट कार्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खर्चा करना है, आपकी फ़ीस ये वो सब मॉम डैड देख लेंगे। बेसिक खर्चा है वो पॉकेट मनी आप ले सकते हो, या आपके बैंक में अगर पैसे डाले हैं मॉम डैड ने तो आप डेबिट कार्ड यूज़ कर लो, या आपके ऐप्स जो होते हैं उस ऐप में, वॉलेट में आपके पेरेंट्स पैसे डालेंगे, बस उतना ही खर्चा करो। हाँ, अगर आपने काम करना स्टार्ट कर दिया, अर्निंग में हुआ, और अब 5 6 7 8 साल में आपको घर लेना है, तो क्रेडिट कार्ड इज़ अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट टू सिबिल स्कोर बनाने के लिए। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक दूधारी तलवार जो कहते हैं ना, डबल एज स्वॉर्ड है। तो इसको समझ लेना चाहिए कि जितना ये फैसिलिटी देता है आपको, जितना लोग तो उसके फेवर में कहते हैं कि 45 डेज़ का ज़ीरो इंटरेस्ट में का जो अमाउंट है वो यूज़ कर रहा हूँ। लोग तो इतने भी ज्ञान देने वाले कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि
उस टाइम पे जो पैसा है वो उसको मैं इन्वेस्ट करके उसको वापस ले आऊँगा। ये सब झंझट में मत पड़िएगा यंगस्टर। बिल्कुल भी आप किसको फॉलो कर रहे हैं और किसकी बात सुन रहे हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। एक बात समझ लीजिए, डेट जो सर पे है उसको आपको पे करना ही है किसी भी हालत में। और इन्वेस्टमेंट जो आपने की है रिस्की एसेट क्लास में, इक्विटी में या किसी में भी, वो पैसा आपको मिलेगा ही वापस, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो एक मैंडेटरी आपका आउटफ्लो है, इनफ्लो इज़ नॉट क्या कहते हैं प्रिडिक्टेबल। तो ऐसी बेट्स आपको कभी खेलनी नहीं है। क्रेडिट कार्ड को यूज़ उतना ही करो जितना आप रीपेमेंट कर सकते हो। अच्छा स्कोर आप रखोगे तो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा। बार्गेनिंग आपकी बढ़ेगी। आपका सिबिल स्कोर जितना अच्छा, उतने आपकी क्रेडिट वर्दीनेस ज़्यादा, और उतने बैंक्स आपको रेड कारपेट बिछाएंगे लाने के लिए। जितनी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बुरी, तो उतने आपको ऐसे ऐसे बैंक के पास जाना पड़ेगा जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको कर्ज़ा दे। और अगर आप गलती से वो कर्ज़ा डूबाने का मतलब आप नहीं भर पाए, तो आपके घर में लोग भी भेज सकते हैं। तो इसके लिए क्रेडिट कार्ड को बहुत ही समझ बूझ के यूज़ करना है। तो क्रेडिट कार्ड एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, राइट, प्रोवाइडेड यू आर यूजिंग इट वाइजली एंड कॉशियसली। Thank you so much, ma'am, for answering that. Ma'am, we have another question in comment section from Naresh. He's saying, "Hello, ma'am. In which scenario it's good to take reverse mortgage?" कितने साल के आप क्वेश्चन पूछ रहे हो? रिवर्स मॉर्गेज एक सीनियर सिटीजन्स के लिए एक अच्छी बात है, राइट। मुझे लगता है कि जिन्होंने पूछा उनको पता है रिवर्स मॉर्गेज क्या है, या उसके बारे में कुछ बताऊँ मैं? I think उन्हें पता होगा। अगर आप बता सकते हो तो जिन्हें पता नहीं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा, मैम। देखिए, रिवर्स मॉर्गेज मतलब क्या है कि जो घर में रह रही हूँ, राइट, वो घर जो है वो पहले मैं क्या करती हूँ, बैंक से लोन लेती हूँ और घर बनाती हूँ। यहाँ मैं उल्टा कर रही हूँ। ये घर मैं बैंक को बोल रही हूँ कि इस पे आप मुझे मैं आपको पे करने से उल्टा करो, आप मुझे हर महीना पे करो, राइट। so ये घर जो है वो मॉर्गेज मैं आपको कर रही हूँ, और इस पे जब तक मैं ज़िंदा हूँ या कुछ एक पर्टिकुलर 15 ईयर्स या कुछ 20 ईयर जो भी टर्म डिसाइड हुए, तब तक आप उसमें मुझे पैसे दो। तो लोन का पेमेंट नहीं कर रही हूँ मैं, उल्टा बैंक मुझे पैसे दे रही है। उसके बदले वो क्या कर रही है, डेफिनेटली मेरा घर अपने नाम पे कर लेगी। तो सीनियर सिटीज़न जिनके पास, जिनको आपकी वेल्थ, उनकी वेल्थ अगर पास ऑन नहीं करनी है, या जिनका जो रिटायरमेंट प्लानिंग है उसके जो पैसे हैं वो शॉर्ट हो गए हैं, राइट, तो उनके पास ये लास्ट तरीका होता है जिससे वो अपनी जो ज़रूरी हर महीने का जो खर्चा है वो निकाल पाए। लेकिन उसके भी काफ़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। हर एक घर रिवर्स मॉर्गेज में नहीं जा सकता। तो बैंक को से बात करना बहुत ज़रूरी है कि वेदर आई एम एलिजिबल फॉर दिस और माई हाउस इज़ एलिजिबल फॉर दिस रिवर्स मॉर्गेज और नॉट। और दूसरी चीज़, समझो आपके बाद ये घर मतलब अगर आपने नहीं पे किया, मतलब आपके बाद अगर ये घर तो बैंक को ही चला जाता है। अगर बैंक से आपके बच्चों को वापस चाहिए तो उनको ये दिए गए पूरा लोन भरना पड़ता है, और तभी ये घर आपको वापस मिलेगा। बट ये सीनियर सिटीज़न के लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। हमारे इंडिया में इसके बारे में बहुत ज़्यादा मतलब अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जिनके पास घर है, इसलिए तो इसको एसेट कहा जाता है ना। घर को एसेट क्यों कहते हैं कि इस तरीके से एक्सट्रीम सिचुएशन में ये आपको हेल्प कर सकता है। थैंक यू सो मच, मैम, आंसर देने के लिए। नरेश, आई होप आपके क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। मैम ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया हमें, तो थैंक यू मैम। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी अब स्टार्ट करना चाहती हूँ, or if somebody wants to start their investment journey right now, so what are the best platforms to understand and analyze the fundamentals of a company? Like कौन सी कंपनी में अगर मुझे मुझे फॉर एग्जांपल किसी XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जिससे मुझे एनालिसिस करने में आसानी होगी उनके बेसिक फंडामेंटल्स को, लाइक इस कंपनी में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको उस कंपनी के बैलेंस शीट्स और अकाउंट्स पढ़िए, राइट।
जब तक आप समझ में नहीं आ रहा है आपको कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के बैलेंस शीट्स पढ़ो, कंपनी के फंडामेंटल्स चीज़ पढ़ो, तो सिर्फ प्लेटफॉर्म में जाके आपको ये चीज़ें नहीं समझेगी। आपको ये बहुत बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड बैलेंस शीट क्या होती है? डू यू अंडरस्टैंड कि अकाउंट्स के स्टेटमेंट कैसे देखे जाते हैं? या बस कुछ इन्फ्लुएंसर ने कह दिया इसलिए उसके पीछे भागो? सो डायरेक्ट इक्विटी इज़ नॉट कप ऑफ एवरीवन्स। वो कहते हैं ना कि आप नहीं कर पाओगे। तो बहुत यंग एज में डायरेक्ट इक्विटी से स्टार्ट करना मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ। अगर आप बहुत इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट विथ अ निफ्टी फंड, राइट। आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। इंडेक्स फंड इजीली फर्स्ट 50 स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा। आपको कोई वरी नहीं करने की कौन से कंपनी में इन्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, कब निकलूँ, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चिंता फंड मैनेजर करेगा। आपको फंड मैनेजर का भी चॉइस के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं कि मैं एएमसी के पीछे भागूँ या इस फंड मैनेजर के पीछे भागूँ। इसलिए आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करने की, जैसे डिसिप्लिन वे से इन्वेस्टमेंट में कर पाता हूँ या नहीं। 2 साल तक मैं समझो 20,000 रुपये SIP के रूप में इन्वेस्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, या बस मैं हॉपिंग की कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, फिर से कर रहा हूँ, फिर बेच रहा हूँ, निकल रहा हूँ या स्टॉप कर रहा हूँ। ऐसे अगर आप कर रहे होंगे तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं रह सकते, नहीं बन सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। जब आपको ये मार्केट समझ में आएगा, इक्विटी के बारे में आपको समझेगा, तब आप डायरेक्ट इक्विटी में जाना देख सकते हो। अदरवाइज स्क्रीनर जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है, राइट। टिकर टेप जैसे जो है, जिसमें आपको अच्छे कंपनी के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं। मनी कंट्रोल के भी प्रो है, उसमें भी काफ़ी अच्छे तरीके से एनालिसिस दिया होता है। लेकिन एनालिसिस क्या करना है ये समझना ज़रूरी है, राइट। जैसे बेसिक चीज़ें कि कंपनी डेट फ्री हो, फिर उसके प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा हो, एफआईआर्स उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं, राइट। ये सब चीज़ें अगर आपको पता ही नहीं है तो आप क्या एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी, जिस कंपनी में इन्वेस्ट करो वो प्रोडक्ट क्या बना रही है, आपको पता है तो ही इन्वेस्ट करो। अगर आपको केमिकल के बारे में पता ही नहीं, और केमिकल का कौन सा तो भी छोटा कंपोनेंट जस्ट लोगों ने पता दे कि बहुत चल रहा है इसलिए आप उसके पीछे भाग रहे हो, ऐसा मत करो। कोई भी मल्टी बैगर के पीछे मत भागो। आपने बेसिक लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट किया, आप समझ रहे हो उस कंपनी का बिजनेस, और आपको समझ में आ रहा है कि ये बिजनेस और 10 साल चलेगा, तो ही इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न मनी है। क्विक मनी या क्विक पैसे बनाने की जगह नहीं है शेयर मार्केट। डिसिप्लिन वे से समझ बूझ के इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से सबसे पहले इंडेक्स फंड से स्टार्ट कीजिए, फिर आप पढ़िएगा डिफरेंट बैलेंस शीट को किस तरीके से पढ़ा जाता है। अगर आप रियली इंटरेस्टेड है तो बहुत बड़े बड़े AGMs जो होते हैं कंपनी के, उसको जाके अटेंड करो, और फिर आप कंपनी में इन्वेस्ट करो। थैंक यू मैम। एंड इंडेक्स फंड की जैसे आप बात कर रहे थे, तो इंडेक्स फंड में भी देर इज अ, इवन दो इट डज नॉट मैटर बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द कंपनी सेम ही है, सेंसेक्स हो या निफ्टी वाली हो, बट व्हाट इज वन दैट यू प्रेफर, निफ्टी 50 वाला इंडेक्स या फिर सेंसेक्स वाला इंडेक्स? नॉर्मली सेंसेक्स और निफ्टी का डिफरेंस क्या है, तो बेसिकली ये कि सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स है, निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, राइट। तो सेंसेक्स थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, मतलब पहले 30 जो लार्ज कैप है उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड बेट है वो, और निफ्टी में और 20 स्टॉक जो एक्स्ट्रा है वो एक आपको एक तरीके से आपका ज़्यादा बास्केट बनता है। तो देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से पोस्ट प्री कोविड सिर्फ लार्ज कैप ही चलते थे, मतलब सेंसेक्स बेस्ड जो इंडाइसिस है वो ज़्यादा चलता था निफ्टी से। लेकिन अभी निफ्टी के बाकी जो 20 स्टॉक्स है वो भी अच्छा करने लगे, राइट। तो निफ्टी भी चलता है। तो ऐसा नहीं है कि दोनों का कंपटीशन निफ्टी या करो, लेकिन नॉर्मली आप निफ्टी फंड से स्टार्ट कर सकते हो, राइट, जिसमें आपको पहले 50 स्टॉक मिल जाएंगे। अब उसमें AMC कैसे चुने, तो इसमें आपको देखना है कि जिसका लीस्ट ट्रैकिंग एरर है, जिसके लीस्ट एक्सपेंसेस है, और जिसका AMC पुराना है, राइट। मतलब मैं हमेशा
इस्टेब्लिश्ड एएमसी के पास जाने की सलाह देती हूँ, ताकि जो भी कुछ ब्लंडर अगर मार्केट में हो गया तो उनका एडिक्वेट कैपिटल है उनके पास कि जो आगे चल के सस्टेन करने में मदद करता है। तो इस तरीके से एएमसी आप चुन सकते हो। ओके। एंड मैम, एक क्वेश्चन जो नरेश जी ने पूछा है वो है कि इंडेक्स, जस्ट अ मिनट, इंडेक्स एंड ईटीएफ का डिफरेंस क्या है? इंडेक्स म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ का क्या डिफरेंस है? जी, देखिए ईटीएफ ये जो होता है वो आपको ईटीएफ लेने के लिए आपको डिमांड अकाउंट मैंडेटरी है, राइट। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड में डिफरेंस यही है कि ईटीएफ ये जो हम इसको अंडरलाइंग एसेट क्लास दोनों की ही इक्विटी होती है, लेकिन इक्विटी ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं वो डीमैट अकाउंट में लेना ज़रूरी हो जाता है। वो शेयर्स के तरीके से आप उसको ट्रेड कर पाएंगे, मतलब रियल टाइम वैल्यू आपको मिलेगी। समझो 2 बजे एक ईटीएफ की जो वैल्यू है, सॉरी 12 बजे जो ईटीएफ की वैल्यू है, तो अगर आपने सेल किया तो आपको 12 बजे की वैल्यू मिल जाएगी। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप कभी पैसा डालो या सेल करो, एट द एंड ऑफ जो डे में एनएवी होता है वही आपको मिलता है, राइट। लेकिन ईटीएफ जो होते हैं ना, वो हमारे यहाँ पे मार्केट इतना प्राइमरी स्टेज पे है, बहुत ज़्यादा फ्लोरिश नहीं हुआ, तो इसमें लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन ईटीएफ्स कभी कभी लीस्ट एक्सपेंस होते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड से, मतलब इंडेक्स म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कम खर्चे में आपको मिलता है, लेकिन डेफिनेटली ब्रोकरेज देना पड़ता है। और दूसरा जो समझो प्लेटफॉर्म की जो फ़ी है वो आपको देनी पड़ेगी, तो वो एक्सपेंस भी कॉस्ट कंसिडर करना ही पड़ता है। और जैसे मैंने कहा कि आपको डीमैट की ज़रूरत नहीं है, आप म्यूचुअल फंड जो इंडेक्स फंड है वो एएमसी के वेबसाइट पे जाके भी खोल सकते हो, और उसमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो सेल एंड बाय आप इजीली कर पाओगे इक्विटी म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स म्यूचुअल फंड में। ओके, थैंक यू सो मच मैम। एक फाइनल क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूंगा, which is, you discussed all about this, but there are so many other stuff as well, financial planning करते हुए। तो एक पर्सन को when should one hire a financial planner? तो ये अगर आप बता सकते हैं तो। जब से आपने जॉब करना स्टार्ट कर दिया, ओके, द डे वन से अगर आपने फाइनेंशियल प्लानर को चुना तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। देखिए, आप जो भी चीज़, जैसे अगर समझो मुझे ड्राइविंग करनी है, मैं खुद भी कर सकती हूँ, मैं ट्राई कर सकती हूँ, या कुछ ऐसे मेरे मॉम डैड से सीख सकती हूँ, या कुछ कलीग से सीख सकती हूँ। तो उसमें क्या होगा, ट्रायल एंड एरर हो जाता है। कभी मेरी गाड़ी ठोक दूंगी मैं, कभी स्क्रैच आ जाएगा, कभी मेरे वजह से किसी को चोट भी लग सकती है, तो ये रिस्क आप कैरी कर रहे हो। लेकिन अगर आप अच्छे मोटर ड्राइविंग स्कूल से गए, राइट, एक अच्छा सीखा हुआ ट्रेनर से अगर आपने ये किया, तो इसका क्या फ़ायदा होता है कि वो आपको क्या नुक्स है या कुछ क्या रिस्क आने वाली रिस्क है, राइट, और किस तरीके से आपको प्रिकॉशन लेना है, किस तरीके से आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना है, ये आपको डे वन से बताता है। तो एक फुल्ली फोकस्ड के हिसाब से, और जैसे मैंने कहा कि 1 महीने का कोर्स आपने लगाया है तो एक भी दिन आप उस पर छुट्टी नहीं लेते हो, क्योंकि आपने उस पर पैसे दिए हैं, राइट। आपको एट द एंड ऑफ ये लाइसेंस चाहिए, तो आप पूरा कोर्स करते हो। या अगर आप मम्मी सिखा रही है, डैडी सिखा रहे हैं, तो आज नहीं गई, कल देखूंगा, परसों देखूंगा, ऐसे नहीं करोगे। तो इसलिए जो भी चीज़ आपको प्रोफेशनली हेल्प अगर मिल रही हो, जो भी चीज़ करने के लिए, वो परफेक्शन के पास जाती है। उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि मुझसे कुछ गलती हो, चांसेस ऑफ प्रॉफिट या चांसेस ऑफ बीइंग इन अ गुड पोजीशन ज़्यादा होती है। वैसे ही फाइनेंशियल प्लानर का है। आप अगर जो मेरे पास प्लेन स्लेट लेके आते हैं ना, एक बंदा आया था 25 साल का, उसने कहा कि मैम ये मेरी पहली सैलरी है, क्रेडिट होने वाली है, मैं 25 तारीख को आपसे बात कर रहा हूँ, 1 तारीख को सैलरी आएगी, मेरे पास कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, अभी आएंगे, तो मैं क्या करूँ। तो ऐसे बंदे का फाइनेंशियल प्लानिंग करने का जो एक खुशी होती है वो बहुत अलग होती है, क्योंकि वो आगे चल के ऐसे गलती नहीं करने वाला जिसकी वजह से वो आगे जाके रिपेंड करे, राइट। वो गलत प्रोडक्ट में नहीं फंसने वाला है,
वो बजटिंग पहले ही महीने से स्टार्ट कर देगा, वो टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस कब लेना है ये बताने वाला उसके पास है। तो जो गलतियाँ आप करेंगे आपके खुद के ट्रायल एंड एरर से, वो चीज़ आप फाइनेंशियल प्लानर की मदद लोगे तो कम हो जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ मेरे जो भी मुझसे बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, कि फाइनेंशियल प्लानर जो होता है वो आपको क्या करना चाहिए बताने वाला होने से ज़्यादा क्या न करे ये बताने वाला होगा, तो वो ट्रू आपका फ्रेंड एंड फिलोसोफर है। अदरवाइज़ रोजी पिक्चर देने वाले, आपका मैं पैसा डबल कर दूंगा, आपको ये दूंगा, ये बताने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, नॉइज़ को कैसे अवॉइड करें, सिंप्लिसिटी कैसे आपके पोर्टफोलियो में लाएं, छोटी छोटी चीज़ों से किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ये सब चीज़ें बताने वाला जो फाइनेंशियल प्लानर है या फाइनेंशियल फीमेल प्लानर है, उनके साथ जब आप जुड़ोगे तो उससे आपके फाइनेंसेस में वंडर आएंगे। सो द आंसर इज़ द डे यू स्टार्ट अर्निंग और द फर्स्ट सैलरी आपकी बैंक में क्रेडिट हुई, तब से आप फाइनेंशियल प्लानर को हायर करना ज़रूरी होगा। थैंक यू मैम, मगर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं फाइनेंशियल प्लानर हायर करने में, बट आई गेस अभी भी किया जा सकता है, इट्स नॉट दैट लेट, बट बिल्कुल। yeah, thank you so much ma'am for this. Shruti, you want to add something? Yeah, thank you so much, ma'am. So, Kalyan, we are ending this session, right? Yes, we are, yes. Yeah. So, thank you so much, ma'am. It was very, very, very insightful. And I personally learned a lot from this session. And I hope a lot of people have learned from all the questions that we asked you. And you answered all of them in such a beautiful way, a beautiful manner. So, we were able to understand a lot of stuff which was new to me also, and I believe to a lot of listeners over here. Oh, we have a speaker. There is K. He wants to ask something. ओके, Yes, Kay, you can ask, yeah. Okay, I guess he's not asking. Okay, but he is in the speaker. Okay, if you want to ask, you can. But okay, yeah, Shruti, go ahead. Also, ma'am, to all the questions that we asked, you summed up all of them, the answers and everything so pretty well. So, thank you so much for joining us today. And thanks to all the audience. Thank you, everyone. I have seen a lot of people over there who have joined us from the beginning of the session and have sticked with us till the end. So, thanks a lot, everyone. Thank you so much, guys. थैंक यू, इट्स And माय प्लेजर, I इट्स would love to करेक्ट, have इट्स लवली। actually this is such a broad topic. We had more of the questions, but we wanted to start from the beginning. करेक्ट, So we would love to have you again डेफिनेटली in डेफिनेटली, some इट्स other ऑलवेज, session whenever you are available. yeah, it's always great to Yeah, yeah. interact with you all. Okay, thanks for the opportunity. Bye bye. थैंक यू मैम, एंड आप लोग प्रीति मैम को ही फॉलो कर सकते हैं, एंड ऑल्सो साथ ही साथ मेक श्योर दैट यू सी हर ट्वीट्स, बहुत इंसाइटफुल ट्वीट्स होते हैं. सो यस मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो नाइस टू अस, एंड आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ब्रॉडली कवर किया. आई हैव सीन पीपल जो इस चीज़ को एग्री करेंगे दैट दे हैव लर्नड अ लॉट, इंक्लूडिंग मी एंड श्रुति एज वेल. थैंक यू So, yeah, कल्याण, ma'am, थैंक्स do you श्रुति। want to add something? Final words? बस यही कहना चाहूँगी कि पर्सनल फाइनेंस बहुत पर्सनलाइज्ड है, कॉपी पेस्ट नहीं चलता यहाँ पे। तो सूझबूझ के आप चीज़ें कीजिए, पैसा रियल होता है, राइट। तो जो नोशनल प्रॉफिट, नोशनल लॉस जो दिखता है, राइट, लोग स्क्रीनशॉट जो ट्विटर्स पे डालते हैं, राइट, एक समझ लीजिए कि उनको ब्लाइंडली फॉलो करने से पहले देखना चाहिए कि ये जो काम वो कर रहे हैं या जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो मुझे मतलब मैं कर पाऊँगा या मुझे वो सूट हो रहे हैं कि नहीं, राइट। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, कौन से इन्फ्लुएंसर के बातों में आ रहे हैं, ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। सो एक्चुअली आपके कोच को सिलेक्ट करना, वो कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और बहुत बड़ा स्किल लगता है, तभी आप आगे चल के अच्छे खिलाड़ी बन पाओगे। तो उस हिसाब से कीजिए, पर्सनल फाइनेंस को सिंप्लीफाइड रखिए, जितना आप इसको सिंपल रखोगे। और दूसरी चीज़, अगर फाइनेंस वर्ड से आप रिलेटेड नहीं हैं तो ये आपका ऑटोमेशन में होना चाहिए। मतलब समझो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ,
तो मेरा काम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या उस जो मेरा मेन अर्निंग सोर्स है उसमें ध्यान देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे मैं कितना ज़्यादा कमाऊँ ये देखना ज़रूरी है, और मैं मेरे इन्वेस्टमेंट को ऑटो पायलट मोड पे डालूँगी और उससे मैं इनकम जनरेट करूँगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने मेन इनकम सोर्स को छोड़ देते हैं और शॉर्ट टर्म गेंस के पीछे भागते रहते हैं कि 100 का 200 कैसे बनाओ, और फिर जो 100 रुपये 200 रुपये बने उसका 500 कैसे बनाओ। इससे अच्छा है कि 100 रुपये का मैं लाख या 1 करोड़ कैसे बनाऊँ, ये देखने का एम रखिएगा, राइट। सो ऑटो पायलट मोड, सिंप्लिसिटी, पर्सनलाइज्ड और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर के हिसाब से अगर आप जाओगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी। सो इट द पर्सनल फाइनेंशियल प्लान शुड गिव यू अ प्लेजर नॉट अ स्ट्रेस, राइट। तो प्लान बना के आप ज़्यादा टाइम क्रिएटिविटी या आपके मेन सोर्स को, इनकम को बढ़ाने के लिए और फैमिली में स्पेंड करिए, ना कि रोज़ अपने पोर्टफोलियो को देखने के लिए। Okay, thank you, ma'am. And thank you everyone for sticking around. And ये बहुत ही insightful space था. It is a recorded space, so you can hear it again अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छा लगे. And you can tweet about this space as well अगर आपको ये space पसंद आया तो. Just make sure that you tag me, Shruti and Preeti ma'am as well. Thank you, ma'am. And I'm ending this space right now. Thank you so much, guys. Bye bye. Good night. Bye. Good night, ma'am. Bye, Shruti. Bye, everyone. Good night. Thank you for listening to us, and if you want to participate in live spaces, just follow our Twitter handles. हम ऐसे spaces हर हफ्ते करते हैं, and अगर आपको ये पसंद आया तो follow करना हमको and share this podcast. Thank you so much and see you next week. Bye bye.